افطار کا وقت خوشی کا وقت ہوتا ہے. روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی، ایک وہ وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کھانے میں اور کسی بھی وقت کھانے میں اتنی خوشی ہوتی ہو جتنی افطار کے وقت 2 گھونٹ پانی پی کر ہی خوشی ہو جاتی. تو اس وقت یہ یاد کریں، آج آپ کا ہوم ورک ہے یہ کہ افطار کے وقت آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو جس طرح اس وقت مجھے خوشی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ اس وقت بھی مجھے اسی طرح کی خوشی ہو، میرے اندر وہ ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا. پھر یہ کہ افطار جلد کرنا مسنون ہے، افطار جلد کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم ادھر ادھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کچن سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اچھا میں آ رہی ہوں، اور اس میں 2-3 منٹ بعض اوقات لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں. تو ڈیلے نہیں کرنی چاہیے، بس ادھر اعلان ہو اور دوسری طرف افطار ہو جائے، چاہے پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. بہترین تو یہی ہے کہ کھجور سے کھولا جائے روزہ، لیکن اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی کا گھونٹ، دودھ کا گھونٹ، جو بھی چیز ہو اس سے کھول لیا جائے. سحری اور افطاری دونوں اوقات میں انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کر سکتا ہے، اور ان دعاؤں میں خصوصاً اپنی بخشش کی دعا، کیونکہ اگر بخشش ہو گئی تو سمجھیے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ہمارا الٹیمیٹ گول تو یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کر دیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. تو روزے کا اصل مقصود پھر کیا ہے؟ تقوی. یعنی اس ساری ایکٹیویٹی سے جو بھی رمضان میں ہوگی، جن جن احکامات پر عمل کریں گے، ہم جو کچھ کریں گے، جو کچھ چھوڑیں گے، ان سب کا جو نچوڑ ہے یا خلاصہ ہے، یہ جو چیز ہم کو لینا ہے وہ تقوی ہے. تو یہ تو ہمارا گول ہو گیا، ایم ہو گیا ہمارا. اس کے لیے کرنے کے کام کیا کیا ہے؟ نمبر 1 تو روزہ رکھنا ہے، کیونکہ پہلی آیت میں کہا گیا کتب علیکم الصیام، اور پھر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور پھر تاکیدی حکم فَلْيَصُمْهُ. ٹھیک ہے، نمبر 1 روزہ رکھنا، جس کی دلیل کیا کیا ہے اس کو بے شک اپنی کتاب پہ انڈر لائن کر لیں یا جیسے بھی آپ لکھنا چاہیں. تو کتب علیکم الصیام وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور فَلْيَصُمْهُ. اس کے بعد آیت 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. روزہ رکھنے کے بعد دوسرا عمل قرآن کے ساتھ تعلق. اگرچہ ساری زندگی مومن کا تعلق رہتا ہے، لیکن خاص طور پر ان آیات کے ریفرنس سے قرآن سے تعلق اور رمضان کے حوالے سے. یہاں پر قرآن پاک کے اتارنے کا اصل مقصد کیا بتایا گیا ہے کہ یہ ہے کیا؟ ہدی للناس. کیا ہے؟ ہدی للناس. کیا ہے؟ کیا معنی ہے ہدی للناس؟ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. للناس تو وہ کون ہے؟ للناس وہ کہاں رہتے ہیں جن کے لیے یہ ہدایت ہے؟ وہ ہم خود بھی ہیں اور ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ہیں. تو قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق کہ اس کی رہنمائی سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور ہمارے آس پاس بھی اٹھائیں. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور پھر یہ رہنمائی ایسی ہو کہ قرآن پاک کے اندر تلاش کیا کرنا ہے. نمبر 1 وہ نشانیاں، وہ اہم چیزیں، یعنی ساری کتاب رہنمائی ہے، لیکن پھر بینات. بینہ کیا ہوتا ہے؟ نشانی، روشن نشانی، یعنی وہ آیات اور وہ احکامات خاص طور پر جس سے ہمیں ایک رہنمائی نصیب ہو. اور کس چیز کے بارے میں خصوصی توجہ؟ والفرقان، فرقان پر، حق و باطل، اچھے برے، حلال حرام، جائز ناجائز میں تمیز. اس کو خود اپنے پہ بھی دوبارہ واضح کریں اور دوسرے لوگوں پر بھی. اب یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس مہینے میں خود بھی سمجھ کر پڑھیں اور دوسروں کو بھی. تو کرنے کے کاموں کی لسٹ میں یعنی تقویٰ جو ہے یہ گول ہے، اس کو تو بالکل سینٹر میں رکھیں یا سب سے اوپر رکھیں. اور کرنے کے کام میں نمبر 1 روزہ رکھنا، اور پھر قرآن پاک سے تعلق، پھر یہ کہ اس کے نیچے کیسا تعلق، ہدی للناس لکھ لیں. اور پھر اس کے بعد ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، تاکہ گنتی پوری کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خاص طور پر روزے کے بارے میں جو احکامات ہیں، یعنی فقہی احکامات ہیں، ان کو بھی دوبارہ سے دہرانا ہے سب. خصوصاً آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ پہلے نماز نہیں بھی پڑھتے تھے، روزہ ضرور رکھتے تھے، لیکن اب روزہ نہ رکھنے والے بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے کئی طرح کے جواز پیش کرتے ہیں. اور خصوصاً خواتین میں یہ مشکل ہے کہ روزہ رکھتے تو ہیں، لیکن اگر اس میں سے کچھ چھٹ جاتے ہیں تو ان کی گنتی پوری کرنے میں سستی اور کوتاہی ہوتی، اس کی طرف توجہ نہیں. بہت سی خواتین پوچھتی ہیں نا کہ یہ ہم نے خود جان کے تو نہیں چھوڑے روزے، جو شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑے جاتے ہیں. تو یہ جو قرآن کا حکم وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّۃَ، یہ بہت ضروری ہے. یعنی روزہ ایک ایسا فرض ہے جس کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے. اگر رمضان میں نہیں تو بعد میں،
تو مریض کے احکام کیا ہیں، مسافر کے احکام کیا ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو کسی وجہ سے روزہ چھوڑیں، مثلاً خواتین کے احکام خاص طور پر کیا ہیں، اس کے بارے میں علم ہونا اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا۔ اگلا حکم یعنی اب کرنے کے کاموں میں کیا آ گیا، جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں مزید، تکمل العدہ۔ نمبر 2، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ کس پر؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا کس پر، کس بات پر؟ آگے پڑھیں نا آیت کو، دیکھیں نا، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ کون ہے؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ کون ہے؟ سب لوگ بطور عام ہیں اور آپ بطور خاص ہیں، یعنی سارے مسلمان بطور عام کس طرح ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت دی، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ٹھیک، لیکن جنہیں دین سمجھنے کی توفیق دی وہ بطور خاص ہو گئے۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر ادا کرنا ہے۔ اب اس کے طریقے کیا ہوں گے؟ تکمل العدہ تو پتہ چل گیا، تکبر اللہ اور تشکرون کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ بھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، یعنی عملی طریقے اور پریکٹیکل چیزیں جو ہیں وہ بعد میں ابھی آتی ہیں۔ اگلا کام کیا کرنا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام رمضان میں۔ قبولیت کے اوقات عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جیسے سحری کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، روزے کی حالت میں آپ حالت عبادت میں ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور افطار کے وقت خاص طور پر، پھر رات کو تراویح میں قرآن سننے کے بعد، تو یہ سارے مواقع جو ہیں قبولیت دعا کے ہیں، اس لیے دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام، یعنی عام دنوں میں بھی جو دعائیں مانگتے ہیں تو اس میں ذرا سی اور کثرت یا حسب استطاعت کثرت مواقع سے فائدہ اٹھانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں، تو جتنا چاہیں اس سے مانگ لیں، جو چاہیں اس سے مانگیں، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ بھی تو میری بات مانا کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے مزید کچھ فقہی احکام ہیں۔ اب دیکھیے کہ گول کیا تھا؟ تقوی۔ اچھا، جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں شاید دنیا چھوڑ دینا تقوی ہے، شوہر کو چھوڑ دینا، اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا اور دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہ رکھنا، شاید یہ تقوی ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ نہیں، جائز حدود کے اندر ایون رمضان میں بھی انسانوں کے حقوق ادا کرنا وہ تقوی ہے۔ ہمارا دین ایک معتدل دین ہے، کیونکہ شروع میں لوگوں کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید، اور اسی وجہ سے نا وہ شک کی بات جو ابھی کی کہ کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی یقینی بات نہیں پتا تھی اس لیے ڈاواڈول تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم واضح کر کے تمہاری رہنمائی فرما دی۔ کسی بھی ایک چیز کی طرف جھکاؤ کا ہو جانا وہ آسان ہوتا ہے کہ انسان ایک راستہ اختیار کر لے یا دوسرا کر لے، اور دونوں کو ساتھ لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے عام طور پر، تو اس چیز کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ پھر اسی طرح آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا کہ صوم وصال سے منع کیا گیا کہ روزے کے ساتھ جوڑ کے روزہ رکھنا، اسی لیے کلو وشربو، کھاؤ پیو، یعنی افطار کے بعد کھانا، سحری کے وقت کھانا، اور سحری کے وقت کھانے کا جو حکم ہے اس کے بارے میں آپ کچھ احادیث آپ کو معلوم ہوگی کہ اس وقت کھانا جو ہے وہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اس کی طرف توجہ دلائے گی، خواہ ایک دودھ کا گھونٹ کیوں نہ ہو، لیکن سحری کھانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اور رمضان میں کرنے کا کام پھر کیا ہوا؟ ازدواجی معاملات اور کھانے پینے کے معاملات میں رہنمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، اور کھانے پینے کے معاملات میں مزید تھوڑی سی بات یہ کہ کیسی خوراک، یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی ذرا سوچ لیں کہ اپنا وقت بچانے کے لیے کیا پکائیں گے، اور عبادتوں میں یکسوئی کے لیے کیا پکائیں گے، نہ اس میں بالکل ہی ایسی خوراک ہو کہ جس سے اتنی کمزوری لاحق ہو جائے کہ روزہ ہی نہ رکھ سکیں، اور آپ کہیں کہ میں تو تقویٰ کے حصول کے لیے فاقہ کشی کر رہی ہوں، تو روزہ رکھنا فاقہ کشی کرنے کا نام نہیں ہے۔ اور اسی طرح نہ اتنا زیادہ کھانے پکانے کی طرف توجہ ہو کہ تراویح نہ پڑھی جا سکے، یا یہ ہے کہ صبح نماز کے بعد قرآن کی طرف توجہ نہ دی جا سکے، تو اس چیز کی طرف بھی فوڈ مینجمنٹ جو ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات، اور اس کے اوقات پھر بتا دیے گئے کہ کب تک یہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اگلا کام کیا کرنے کا ہے؟ قیام اللیل، یعنی رات کی تراویح کی نماز جو ہے۔ پھر مزید اعتکاف، جن کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے، جن کے اوپر اور ذمہ داریاں کم ہوں، جیسے بچے چھوٹے یا گھر پر کوئی بیمار یا بزرگ یا کوئی ایسا جس کی خدمت مطلوب ہو، تو اگر وہ ہے تو اس کی خدمت ہی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ذمہ داری خاص نہیں ہے تو پھر اعتکاف کی طرف بھی توجہ۔ اور اس کے بعد اگرچہ یہ رمضان کے احکامات میں سے نہیں ہے لیکن اس سے ملحق ہے۔ ملحق کا کیا مطلب ہے؟ جڑا ہوا ہے، اس کے فوراً بعد آیا کہ اللہ کے حکم سے اگر حلال کھانا چھوڑتے ہو
तो हराम भी छोड़ दो। रिस्क हराम को छोड़कर रिस्क हलाल के लिए दुआएं भी, कोशिश भी और उसकी तरफ तवज्जो भी। इसके अलावा मजीद जो बातें हमें पता चलती हैं अहादीस से, वो है कि सदका खैरात, और उसमें रोजा इफ्तार कराने से लेकर अपने घर वालों को खिलाने पिलाने में फराख दिली का सबूत देने से लेकर हमसायों की खबरगिरी और फिर नेकी और खैर के मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेने से लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस मौके पर याद रखना जहां जहां जरूरत हो, यानी वो तमाम चीजें खुसूसी तौर पर इस महीने में तवज्जो के काबिल हैं। फिल वक्त तो यही चीजें जहन में थी। अब इसको थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि मुख्तलिफ काम किस तरह करना है, और इसमें आपको भी मैं शरीक करूंगी कि आप भी अपने अपने मशवरे दें। पहली बात तो यह है कि रोजा रखना है, ठीक है। उसके लिए आपके पास सहर और इफ्तार के औकात जो हैं वो सही तौर पर होने चाहिए, ताकि औकात की सही पाबंदी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें सही इल्म नहीं होता और हम एंड जब सहरी बंद होने का वक्त होता है उस वक्त उठ रहे होते हैं, या तो ये उसकी तैयारियों में से होता है। इसके अलावा कोई भी अच्छी किताब या कोई भी अच्छी कैसेट इस मौजू पर जरूर एक दफा सुन लें, ताकि पूरी चीज की तैयारी या जहन आमादा हो जाए। उसके बाद यह है कि कुरान पाक के साथ ताल्लुक के तरीके सोचें। एक तो आपका अपना नाजरा कुरान पाक होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आयत आई है हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। बात यह है कि जब इंसान रोजे से होता है ना, तो उस वक्त इंसान के अंदर एक खास किस्म की कैफियत होती है जो उसे दुनिया से निस्बतन दूर और अल्लाह ताला से निस्बतन करीब करती। हिदायत की तरफ सबका रुझान होता है। कुरान चूंकि इस महीने में उतारा गया, इसलिए इस महीने में कुरान पढ़ना एक खास खुशी का बायस होता है। उसको सीखना और उसको समझना और उसको सिखाना एक खास किस्म की कैफियत इंसान के अंदर पैदा करता है जो कुरान पाक रोजे की हालत में पढ़ा या पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि साफ तौर पर लिखा गया है कि ये किताब इंसानियत की हिदायत के लिए, लेकिन इंसानियत तक इस किताब की हिदायत किस वक्त जाएगी? उसी वक्त जाएगी कि जब कुरान के जानने वाले उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाएंगे किसी भी तरीके से, खा किताब देकर, खा पढ़ के सुनाकर, खा किसी भी और तरीके से। लेकिन रमजान के मौके पर जबकि दूसरे लोगों का भी रुझान कुरान पाक की तरफ होता है, तो उनके कुरान की मोहब्बत को असल हुक्म की तरफ फेर दीजिए कि वो इससे हिदायत हासिल करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने अपने घर में, अपने अपने इलाकों में, अगर आप किसी स्कूल में जा सकते हैं तो स्कूल में, किसी क्लब में, किसी भी जगह जहां पर लोग इकट्ठे हों, वहां पर आप इस चीज का एहतमाम कर सकते हैं कि मिलजुल कर कुरान पाक पढ़ें। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप मुफस्सिर कुरान ही हो तो आप ये काम कर सकते हैं। आप कुछ ना कीजिए, सिर्फ कुरान का तर्जुमा ही पढ़कर सुना दीजिए। और अगर आप समझते हैं कि आपको पढ़ के सुनाने में दिक्कत है तो आप कैसेट के जरिए भी मदद ले सकते हैं, या आप जो आने वाले लोग हैं उनको भी शरीक कर सकते हैं अगर उनमें से अच्छी उर्दू पढ़ने वाले हैं। या आप यूं भी कर सकते हैं कि कुरान पाक की जैसे तिलावत एक रुकू की सुनी है, फिर उसके बाद उसका तर्जुमा जैसे अभी आपको सुनाई गई, एक कैसेट प्लेयर आपके पास हो, आप क्या करें, नाजरा कुरान पाक के सेट्स आपके पास कैसेट की शक्ल में मौजूद हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जो किरात आपने सुनी है ये भी तैयार कराई गई है, मुहैसनी का सेट तैयार हो चुका है, अजमी का मौजूद है, शातरी का मौजूद है। तो इनमें से आप कोई भी एक लेकर कुरान पाक, तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, अजीजों को, दोस्तों को बिठा के उन्हें सबके कुरान पाक खुलवाएं, कैसेट ऑन करें, वो अपना अपनी उंगली रख के उसकी तिलावत सुने। जब रुकू हो जाए कैसेट बंद कर दे, फिर आप क्या करें, उसका तर्जुमा उनको पढ़ के सुना दें, फिर ऑन कर लें। बेशक अपने पास से एक लफ्ज ऐड ना करें, डजेंट मैटर। यानी अगर आप ये समझते हैं कि अभी आप बहुत तफसीर करने के काबिल नहीं हैं, बहुत आप ज्यादा बोल नहीं सकते, या अभी आप बहुत सी चीजों पे घबराते हैं बात करने से, तो सबको आप बताइए कि मैं भी सुन रही हूँ, आप भी सुनिए, फिर ऑन कीजिए, फिर वो सब सुने, फिर तर्जुमा आप पढ़ के सुनाइए, फिर इसी तरह। और अगर आप उससे आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्या कर, ये एक तरीका बता रही हूँ, नहीं ये मैं ही नहीं कह रही कि यही एक तरीका जो आपको फॉलो करना है, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दे रही हूँ कि कुछ न कुछ आप जरूर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको अल्लाह ताला ने खुद अरबी अच्छी पढ़ने की सलाहियत दी है, आप अरबी थोड़ी थोड़ी पढ़ें, साथ तर्जुमा पढ़ें, और जिस तरह रमजान का प्रोग्राम आप सुनते रहे हैं मुझसे, उस तरीके पर आप जहां जहां मुनासिब हो मजीद अहादीस कोट करें, या कोई बात आपको जो आपने पढ़ रखी हो और जो आपके पास यकीनी इल्म हो, यानी अपनी आरा का बहुत इजहार न करे, जो यकीनी इल्म। देखिए कुरान पाक की तफसीर किस तरह होती है, नंबर 1 कुरान पाक की तफसीर कुरान पाक ही से, यानी उससे रेलेवेंट आयात जो हैं उनको आप बता सकते हैं। लेकिन रमजान में बहुत ज्यादा रेलेवेंट आयात इसलिए भी नहीं कोट करते होते
क्योंकि वो पूरा जो कुरान से गुजरना होता है, तो वो एक जगह नहीं तो दूसरी जगह वो आयत आ जाएगी। इसलिए दूसरा तरीका तफसीर का क्या होता है कि कुरान पाक की तफसीर हदीस से, यानी जो आयत है उससे मुतल्लिक कोई हदीस जो है आपको मालूम है तो वो आप सुना सकते हैं, वो आप पहले से ही तैयार करके लिखी हुई हो। जैसे पिछले साल मैंने काफी तफसीलन अहादीस कोट की थी मुख्तलिफ मौजूआत पर। तीसरी बात यह कि क्लास में जो कुछ आप पढ़ते रहे हैं उसमें से अगर कुछ बातें आप रोजाना का सिपारा पहले खुद पढ़ लें, उसमें से कुछ चीजें हाईलाइट किए हुए हों, उनको आप एक पेपर पर नोट कर लें आयत के नंबर के साथ, जहां जहां आए उसमें से वो बातें जो आपके दिल पे असर की, जो आपको अच्छी तरह समझ आई, जो आपकी दुरुस्त हैं, वो आप दूसरों को भी सुना दें। तीसरी बात यह है कि आप कोई भी अच्छी तफसीर, मसलन मुख्तसर तफसीर में ये अहसनुल बयान मुख्तसर है, क्योंकि अगर आप बहुत लंबी तफसीरें पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना वक्त शायद आपके पास ना हो कि आप पूरे सिपारे की सारी तफसीर डिटेल में पढ़ सके और फिर आप आगे पढ़ाने बैठे। और चूंकि रमजान में इतनी लंबी तफसीर का वक्त नहीं होता, लिहाजा जब आपके पास बहुत सा इल्म इकट्ठा हो जाता है फिर उसको डिलीवर करने में आप मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसलिए ब्रीफ रहें, प्रिसाइज बात करें और छोटी छोटी चीजें आप उसमें ऐड करें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग पहले भी करते रहे हों तो वेल एंड गुड, लेकिन जिन लोगों के पास पहला मौका है जैसे आपकी अक्सरियत का, तो वो इस तरीके पर मुख्तसर सी बातें चुनी हुई छोटे छोटे जुमलों की शक्ल में ऐड कर दें। फिर इसी तरह यह है कि अगर आपके पास बिल्कुल तैयारी करने का वक्त नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप पढ़ सके, तफसीर पढ़ सके, या आपने पढ़ तो ली लेकिन आप अभी हिम्मत नहीं पा रहे इतनी देर डिलीवर करने की, या इतनी देर बोल नहीं सकते, या कुछ और वजह है, तो उस सूरत में फहमुल कुरान कैसेट जो है वो भी कैसेट पर लोगों को जमा करके सुना सकते हैं। फिर इसी तरह यह है कि अगर आप समझते हैं कि लोग ऐसे हैं आपके आसपास जिनके पास 2 घंटे बैठने का वक्त नहीं, क्योंकि ये सेशन कम से कम 2 घंटे का हो तो एक सिपारा होता है, इससे कम में नहीं होता। तो अगर आप समझे कि लोगों के पास, मसलन आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर वॉलंटरीली जा रहे हैं और लोगों को इंटरेस्ट है लेकिन उनके पास वक्त नहीं है, मसलन आधा ही घंटा है, तो आप एक और काम ये कर सकते हैं कि आप हर सिपारे की सिलेक्टेड आयत पढ़ के उनको उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर भी सुना सकते हैं, और इस तरह हर रोज 30 पारे एक एक करके सुना सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि कुरान पाक की तजवीद की क्लास जो है वो शुरू कर सकते हैं, लोगों को नाजरा पढ़ाना शुरू करें। हो सकता है 1 महीना वो रोज पढ़ते पढ़ते इस काबिल हो जाए कि वो काफी हद तक कुरान पाक ठीक पढ़ सके, और उसके बाद कुछ अहादीस सिलेक्ट कर ले या आयात सिलेक्ट कर ले, उनको आप उस मौके पर साथ सुना दे। चाहे आप बच्चों की तजवीद की क्लास लें, चाहे आप यंगस्टर्स की लें, चाहे आप बूढ़ों की लें, चाहे आप किसी की भी लें, लेकिन कोई मौका स्पेयर न करें कि जहां खैर की कोई बात बताए नहीं, क्योंकि कुरान पाक हुदल लिन्नास है। तजवीद पढ़ना लाजिम है, यानी सही पढ़ना कुरान पाक को जरूरी है, लेकिन खाली वो पढ़ा के फर्ज अदा करना मत समझे, उसके लिए साथ जरूरी है कि कुछ न कुछ, जो जाहिर है कि जब कुरान पढ़ाते हैं तो ये हो नहीं सकता कि अपना दिल ना तड़पना शुरू हो जाए और वो बात जो आपको लग रही है वही आप बात दूसरे को भी कहानी की शक्ल में और किसी न किसी आसान तरीके से दूसरे तक न पहुंचाएं। फिर इसी तरह जो हमने पहले बात की, यानी रात की तरावीह की नमाज जो है, उसमें अगर करीब की कोई मस्जिद हो वहां आप जा सकते हैं, अगर कोई हाफिजा हो तो घर पे इकट्ठा करके आप लोग अपने खानदान वाले या अपने गली मोहल्ले वाले लोग मिलके पढ़ सकते हैं। लेकिन इन रातों में क़याम का बहुत अजर है, और जो कुरान पाक हालत नमाज में, हालत क़याम में पढ़ा जाता है उसका अजर सवाब भी कुछ और है। जिसे वो हदीस में आता है ना, मन क़ाम रमदान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, जिसने रमजान की रातों में क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो हस्बे मौका तरावीह का एहतमाम जो है, और उसमें आसानी हो जाती है अगर चंद लोग मिलकर पढ़े। अगर और कोई नहीं आपके पास, अपने बच्चों को साथ खड़ा कर लें, क्योंकि बाज़ का तो मस्जिद नहीं जाते या कुछ होता है, उनको खड़ा करें या कुछ। और जैसा कि आपको बताया भी गया था कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम जो थे हजरत ज़कवान, वो मुसहफ से भी देखकर पढ़ा करते थे। तो अगर कोई नहीं आपके पास, कोई और दूसरा नहीं, ना कोई हाफिज है, ना मस्जिद है, ना कुछ, तो कुल हुवल्लाह पे तरावियां मत पढ़े। उसके लिए क्या करें, मोटे लफ्जों वाला सिपारा पास रख के और अकेले भी खड़े होकर एक एक सिपारा रात को पढ़ लें। और अगर आपके साथ कोई और लोग मौजूद है तो हर 2 या 4 रकतों के बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसी सिपारे के जो अहम मौजूआत है उनमें से चंद एक के बारे में बता सकते हैं कि देखें हमने जो सिपारा पढ़ा है इसके अंदर क्या बात आई है। तो इस तरह अगर आप में से हर शख्स सिर्फ 10 लोगों तक भी इस रमजान में
कुरान की तालीम पहुंचाता है, तो आप खुद सोचिए कि बात कहाँ तक जा सकती है, और ज्यादा तो आप जितना चाहें इस नूर को बढ़ा लें। फिर इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि हर रोज थोड़े थोड़े जो मसाइल हैं वो भी बयान कर सकते हैं कि किन चीजों से रोजा टूट जाता है, किन चीजों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। इन चीजों पर भी आप बात कर सकते हैं, और कोशिश करें कि इख्तिलाफी मसाइल से बचें और उसमें झगड़े नहीं और उसको बहुत इशू नहीं बनाएं। खास तौर पर हमारे यहाँ जिस मौजू पे बहुत रमजान में झगड़ा होता है वो तरावी की तादाद है। उसमें आप लोगों को उनकी सहूलत पे छोड़ दें, उनका पीछा ना करें कि वो इतनी पढ़ें या उतनी पढ़ें। ये ऐसी चीजें नहीं है कि जिस पर हम आपस में दिल बुरे करें और मुसलमानों की इज्तिमाइयत में खलल आए और एक दूसरे पर हर्फ उठाएं, क्योंकि ये तकवा के खिलाफ है। क्यों कहा गया कि जो कोई रोजे में हो तो उसे क्या करना चाहिए, उससे शोर शराबे और लड़ाई झगड़े से परहेज करना चाहिए, और अगर कोई उससे लड़ने झगड़ने को आए तो फल यकुल इन्निम्रुउन साइम, कि मैं तो रोजे से हूँ, मैं तो इस पे बहस नहीं कर सकता, मैं झगड़ा नहीं कर सकता, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो तुम कर सकते हो। बुनियादी तौर पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो चीज साबित है कि रमजान और गैर रमजान में आप जो थे वो 8 रकत पढ़ते थे, लेकिन ज्यादा नफलों के ऊपर कोई कैद नहीं। अगर कोई 20 पढ़ता है या आप किसी मस्जिद में पढ़ते हैं और वहां 20 में कुरान पाक का सिपारा पूरा हो तो सिपारे को पूरा कीजिए, और उसमें 20 पढ़ने में हर्ज नहीं है, उसको 20 तक पढ़ जाइए। यानी ये ऐसी चीजों में से नहीं है कि जो हराम हलाल के दायरे में आती हैं या नऊजुबिल्लाह किसी बिदअत और उसमें आती हैं। इसमें बुनियादी तौर पर बात यह है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि बाज लोगों के नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 8 ही थी, और अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहे तो उस पर कोई एतराज नहीं है। तो इसमें यह है कि अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में हैं कि जहां पर 8 पढ़ रहे हैं और सिपारा वहां मुकम्मल हो गया है, तो उसमें आप ये ना समझे कि हम गुनाहगार हो रहे हैं। उनमें क्या होता है कि क़याम लंबा हो जाता है। फिर इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मौजू पर कोई बहुत इख्तिलाफी राय पाई जाती हो रमजान और रोजे के अहकाम से मुतल्लिक, इसलिए बाकी चीजों में इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी अहकाम बताते हुए। और वैसे भी आप पढ़ के ही सुनाएंगे, अपने पास से तो फतवे नहीं देंगे। फिर इसके बाद दुआएं जो हैं, कोशिश करें कि लोगों के अंदर मसनून दुआओं का रवाज हो, क्योंकि दुआ हर इंसान की जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ गैर मसनून तरीके बहुत राइज हो गए हैं। तो उसकी वजह से बसा औकात ऐसी दुआएं भी आ जाती हैं कि जिनमें जो मफहूम जो है वो इतना दुरुस्त नहीं होता, या उसमें कुछ ऐसे अल्फाज शामिल कर दिए जाते हैं बसा औकात जो शिर्क की हद तक पहुंचते हैं। तो जब आप मसनून चीजों को इंशाल्लाह रवाज देंगे तो वो चीजें बगैर किसी झगड़े के खुद ब खुद खत्म होती जाएंगी, और खुद अपनी भी दुआ का है। तो अच्छा, एक और चीज, आप अपनी क्लासेस में जैसे अगर सिखाना हो तो इज्तिमाई तौर पर ऊंची आवाज में दुआ पढ़वाएं, लेकिन जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो कभी कभी खामोश भी पढ़ें, क्योंकि सिर्फ राग लगा के दुआ पढ़ने से बाज़-औक़ात नुकसान ये होता है कि दूसरे लोग पढ़ रहे हैं तो हमारी पूरी तवज्जो कोई नहीं होती उस पर। हम कोई बीच में से आधा जुमला इधर पढ़ लिया, आधा आखिर में पढ़ लिया, बीच में सांस लेते रहे, और इस तरह वो दुआ का जो पूरा अदब है वो नहीं रहता। सहाबा कराम हमें कोई इस तरह मिल के इकट्ठे दुआ नहीं पढ़ा करते थे, इसलिए इसको मुस्तकिल तौर पर रवाज देना फिर बिदअत ही ना हो जाए, या हम कोई ऐसी रस्म ना शुरू कर दें कि जो दीन में एक नया इजाफा हो। तो इसलिए तालीम के लिए, सीखने के लिए मिलकर पढ़ने में हरज नहीं है, लेकिन इसे लाजिम समझना और फर्ज समझना ये दुरुस्त नहीं है। कभी कभी यानी आप जब सीख जाए लोग तो फिर क्या करना शुरू कर दें कि दिल में पढ़े, ताकि यकसुई और तवज्जो ज्यादा हो। जैसे कि पहले भी बात हुई कि असल जो हदफ है और गोल है रोजे का वो क्या है, तकवा। तकवा 2 चीजों का नाम है, एक अल्लाह के खौफ और दूसरे अल्लाह की मोहब्बत, यानी अल्लाह ताला का एहसास होना दिल में। ये पैदा उस वक्त होता है जब आप उन सारी चीजों को छोड़ेंगे जो अल्लाह ताला ने मना की है, यानी हराम, नाजायज, नापसंदीदा उमूर को छोड़ना। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा ताअमहु व शराबहु। जिसने रोजा रख कर झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई जरूरत नहीं कि वो शख्स भूखा या प्यासा रहे। और खुसूसी तौर पर जिस चीज की प्रैक्टिस करनी है वो ज़बान की एहतियात है। हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना हमारे मुंह के अंदर है, और वो हमारी ज़बान है। बसा औकात हम अपनी ज़बान से ऐसी बातें निकालते हैं जो हमारे सारे अमाल को बर्बाद कर सकती। इसलिए बी केयरफुल। सबसे ज्यादा जिस चीज की प्रैक्टिस की जरूरत है वो क्या है, ज़बान की हिफाजत, इसको लगाम देना, इसको कंट्रोल करना। पहले जमाने में तो चुप का रोजा होता था, अब वो नहीं रहा, लेकिन हमें चुप तो नहीं रहना,
मगर गलत चीजों से परहेज करना है, और उसमें खास तौर पर किसी को दुख देने वाली बात ना हो। बहुत कुछ डिस्कस हो चुका है, लेकिन सिर्फ याद दहानी के तौर पे कि इंसान भूलता रहता है। कहीं बदतमीजी की टोन ना हो, कहीं रूडनेस ना हो, कहीं शाउट करना ना हो, कहीं किसी को ताना देना ना हो, किसी के एहतराम में कमी ना हो। इन सारे उमूर का ख्याल रखना है। बहुत सी चीजें आप अपने रवैये और अपने अमल से दूसरों को सिखा सकते हैं, और खुसूसन अपने से छोटों के साथ, जैसे बच्चे हैं, सर्वेंट्स हैं, वगैरह वगैरह। जिसको बच्चों का और अपने सर्वेंट्स का एहतराम करना आ गया, वो कामयाब हो गया, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ वो हमें जवाबन पकड़ नहीं सकते बेचारे ज्यादा, या मौका हमें मिल जाता है कुछ ना कुछ मनमानी करने का। फिर इसके बाद सदका खैरात। सदका खैरात जो है ये इंसान के गुनाहों का कफारा है। ठीक है, रमजान में 1 दिरहम या 1 रुपया जो है वो 70 के बराबर है। सदका खैरात में 2-3 चीजें आप कर सकते हैं। एक तो है खाना खिलाना। कोशिश कीजिए कि आसपास के वो लोग, वो बस्तियां, वो इलाके जहाँ पर लोगों को वो सब कुछ मयस्सर नहीं जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, तो उसमें उन तक खाना पहुंचाएं। और एक चीज जो आमतौर पर हम देखते हैं या कर जाते हैं कि खुद तो कुछ खाते हैं मगर गरीबों को खिलाते वक्त एकदम बिल्कुल ऐसा खाना खिलाते हैं जैसे उनको इंसान ही नहीं समझते या जानवर समझते। तो इस मेयार का जरूर ख्याल रखें कि खाना वो हो जो दूसरों के लिए भी खाने के काबिल हो। बसा औकात हम पका पकाया खाना भिजवाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर या मुख्तलिफ इलाकों में, तो उसमें भी इस पहलू का ख्याल जरूर रहे कि वो लुकमा आप खुद कितनी खुशी से खा सकते हैं जो हम दूसरों को सवाब और अल्लाह की खुशी के लिए खिला रहे हैं। क्योंकि कुरान पाक में क्या आता है खाना खिलाने के बारे में, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, वो खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में। तो जो काम अल्लाह की मोहब्बत में किया जा रहा है उसकी क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। फिर इसी तरह यह है कि खाना खिलाने के अलावा कपड़ा पहनाना, और खुसूसन ईद के मौके पर आप इसके बारे में देख सकते हैं कि जिन लोगों को कपड़ा मयसर नहीं वहाँ उसका एहतमाम करना। यानी आप यूँ कर सकते हैं कि जो अपने सदकात हैं उनको कुछ तकसीम कर लीजिए। कुछ अपने आसपास के लोगों को, ये ना हो कि हम दूसरी तरफ करते करते अपने जो हमसाए हैं हमारे वो भूखे हों, या हमारे जो गरीब अवाम है वो तरसते तड़पते रहें, कि उनको जो रमजान में जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता था वो सारा उनका हक जो है वो मारा जाए। तो बुनियादी तौर पर जो सदकात होते हैं किसी भी इलाके के, वो उन्हीं के गुरबा पे जाते हैं। हाँ, उसके अलावा भी अगर कहीं और जरूरत है तो भेजे जा सकते हैं, मगर अपने इलाके के जरूरतमंद लोगों को, अपने शहर के, अपने मुल्क के, उनको भी आप फरामोश नहीं करेंगे। क्योंकि बसा औकात हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, एक तरफ काम करने लगते हैं तो दूसरी तरफ बिल्कुल हम बंद कर देते हैं कि नहीं अब ये तो गोया जरूरत ही नहीं रही। फिर इसी तरह यह है कि सदका जारिया के कामों में, दीन को फैलाने के, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे पैम्फलेट्स हैं जो रमजान के मौजू पर हैं, वो इंशाल्लाह ताला यहाँ अवेलेबल किए जाएंगे, उनको आप दूसरों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। इसी तरह जो लोग न तो किसी क्लास में आ सकते हैं, ना ही कोई दर्स अटेंड कर सकते हैं, ना आप उन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मसलन ट्रैवलिंग करते हैं या कुछ और, तो आप उनको कैसेट्स की शक्ल में गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। और कुछ और कैसेट्स जो अभी आई हैं उसमें खुशगवार बाहमी ताल्लुकात, जो आपको याद होगा डिस्कशन थी सूरत अल हुजरात में, गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़ वगैरह पर काफी तफसील में ये कैसेट रिलीज हो चुकी है। क्योंकि रोजा रख कर भी बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो आपस में गीबत वगैरह और इस तरह की चीजें नहीं छोड़ते, तो इन अहकामात को आम करने की माशरे में जरूरत है कि जिसकी वजह से हमारे माशरे का सुकून बर्बाद है। इसी तरह दोस्ती के मौजू पर, और इसी तरह इंसान अल्लाह का मोहताज है। ये कैसेट खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ आना ही नहीं चाहते, तवज्जो ही नहीं देना चाहते, यानी बहुत दूर हैं, उनको अपनी जिंदगी में जरूरत महसूस नहीं होती, तो उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि आप अल्लाह के मोहताज हैं, आपको जरूरत है, अल्लाह की तरफ तवज्जो करें। इसी तरह तहारत पर भी कैसेट्स रिलीज हो चुकी हैं, हज और उम्रा की भी हो चुकी हैं। आयतुल कुर्सी पहले इस तरह रिलीज की गई थी कि सिर्फ आयतुल कुर्सी थी, लेकिन अब उसकी दूसरी तरफ आयतुल कुर्सी का तर्जुमा और तफसीर भी मौजूद है। कारी महसनी की किरात है, दुरूद शरीफ पर है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। फिर इसी तरह तालीमुल कुरान जो आपकी क्लास के कैसेट्स थी वो 124 पारे हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला रमजान में उम्मीद है कि ये मुकम्मल हो जाएगा सेट। फिर इस तरह कारी शात्री और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, ये जो सूरत फतह में थी ना आयात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमाउ बैनहुम वाली, जो ये भी आपस के बाहमी ताल्लुकात के लिए एक अच्छी याद दहानी है। फिर इसी तरह घर टूटने ना पाए, ये भी कैसेट जो है घरों की, यानी शौहर बीवी और जो घर वालों के ताल्लुकात की बाहम इस्लाह की बातें हैं उनकी याद दहानी है।
کیونکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈیورس کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بسا اوقات یہ دلوں کی تنگی اور آپس کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کلیشز کا بڑھ کر بہت بڑا بن جانا، اور کچھ ایسی چیزیں کہ جو ہم بسا اوقات کریں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، اور دنیا کا بھی سکون لٹ جاتا ہے۔ پھر گھر والوں کو آگ سے بچائیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پھر یہ کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں، یہ خاص طور پر رمضان میں آپ کر سکتے ہیں۔ حج اور قربانی کے مسائل، رسول اللہ کا حج وہ جو ایک کہانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی، پھر اللہ کے مددگار بنو، پھر کتاب الفتن جو بخاری کی ہم نے کی، اس کو بھی ریلیز کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ یہاں رابطہ رکھا کریں تو اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم ویسے کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر اپڈیٹ کر دیا کریں جو بھی نئی چیزیں آئی ہیں، تو اگر آپ کبھی کبھی کمپیوٹر پہ کھول کے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں کہ اور کیا آ چکا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔